فروش کے ہاتھوں ایک قتل ہو جاتا ہے، اور جب شہزادی تاشیہ کو اس بارے میں معلوم ہوتا ہے تو وہ بہت گھبرا جاتی ہے۔ اس کے آگے کی کہانی ہم کنٹینیو کریں گے۔ تاشیہ نے جلدی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے ایک طرف کھینچتی ہوئی بولی ہے، اب یہاں ایک لمحہ بھی رکنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ آؤ یہاں سے نکل چلیں، ابھی جان بچانے کا موقع ہے۔ میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ میری نگاہ اس دور افتادہ الاؤ پر جم گئی جس سے اٹھے ہوئے شعلے پہلے سے کہیں زیادہ غضبناک ہو گئے تھے۔ میں یہاں تک آ گیا ہوں اور میرے ہاتھوں ایک قتل بھی ہو گیا ہے، تو میں اپنا مقصد حاصل کیے بغیر آگے نہیں جاؤں گا۔ میں پر اسرار قبروتیوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ ان میں کتنی عورتیں شامل ہیں؟ میں نے پوچھا۔ قبیلہ قبروت سے تعلق رکھنے والی ساری کی ساری عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ میں نے غیر اہم سمجھ کر یہ بات تمہیں نہیں بتائی تھی۔ تم نے یہ کیا کر دیا؟ اب یہ تمہیں کبھی نہیں بخشیں گی۔ کسی نہ کسی طور ڈھونڈ نکالیں گی اور انتقام لیں گے۔ کاش میری تم سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم قبروتیوں کی ٹوہ میں لگ جاؤ گے۔ اجنبی، تم نے اپنے ساتھ مجھے بھی مصیبت میں ڈال دیا۔ میں نے تم پر جبر تو نہیں کیا تھا، پھر تم میرے ساتھ کیوں چلی آئی؟ اب بھی موقع ہے، تم اپنے راستے پر جا سکتی ہو۔ اور تم؟ اس نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ میں ادھر جاؤں گا، اور تاشیہ کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا، لیکن قدموں کی چاپ سے محسوس ہوا کہ وہ میرے پیچھے ہی آ رہی ہے۔ الاؤ کے قریب پہنچ کر ہم ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو گئے۔ ہماری نگاہیں وسیع دائرے میں روشن آگ کے سرخ زبانوں پر جم کر رہ گئیں۔ سفید لبادوں والے قبروتیوں ہیولے آگ کے گرد رقص کر رہے تھے اور بلند آواز سے کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ میں نے تاشیہ کی طرف دیکھے بغیر سرگوشی میں پوچھا، وہ عورت جو ایک طرف کھڑی ہے، یہ کون ہے؟ میرا اشارہ اس عورت کی طرف تھا جو گا رہی تھی اور نہ رقص میں شریک تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک طلائی تلوار چمک رہی تھی۔ اس کا جسم دبلا پتلا تھا اور وہ دراز قامت تھی۔ اس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ یہ نوبیس ہے، بڑی پجارن، تاشیہ نے سرگوشی میں جواب دیا۔ میرا امزاد یوتابا اس سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے، بلکہ ہر کوئی اس سے ہمیشہ دہشت زدہ رہتا ہے، اور میں بھی اس سے ڈرتی ہوں۔ اگر تم بالکل ہی احمق نہیں ہو تو تمہیں بھی اس سے خوف آئے گا۔ ذرا رقص کرنے والوں سے پرے درخت کے نیچے دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ میری نگاہ اب تک اس طرف نہیں گئی۔ درخت کے نیچے ایک بے لبادہ لڑکی ٹکٹکی سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر تسموں سے باندھے ہوئے تھے اور منہ پر میں کپڑا ٹھوسا ہوا تھا۔ فاصلے کے باوجود اس کی آنکھوں سے دہشت ابلتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک رقص تھم گیا، اس کے ساتھ ہی وہ مہیب شور بھی ختم ہو گیا۔ رقص کرنے والی لڑکیاں ٹولیوں کی صورت میں منتشر ہو گئی۔ 4 لڑکیاں ٹکٹکی سے لٹکی ہوئی لڑکی کی طرف جا رہی تھیں۔ 8 لڑکیاں آہنی کھانچوں سے آگ کو مزید دہکانے میں مصروف ہو گئی، اور کچھ لڑکیاں کوئلہ لا کر آگ میں ڈالنے لگی، جس سے شعلے بھڑک کر درختوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر تک اڑنے لگے۔ میری نگاہ دوبارہ ٹکٹکی سے لٹکی ہوئی لڑکی پر جم گئی۔ اسے تسموں سے آزاد کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے منہ سے کپڑا نہیں نکالا گیا۔ لڑکی کا چہرہ دہشت کی زیادتی سے سفید پڑ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے وجود میں لہو کی ایک بوند بھی نہ رہ گئی ہو۔ اس کی آنکھوں سے خوف ابل پڑ رہا تھا۔ آزاد ہونے کے بعد اس نے سر کو ادھر ادھر جھٹکا اور تھوڑی سی جدوجہد کی، لیکن مضبوط گرفت کے سامنے اس کی پیش نہ گئی۔ اسے گھسیٹ کر ایک بڑے بلوط کے نیچے پہنچا دیا گیا، پھر ایک چوبی تختے پر گرانے کے بعد اس کے ہاتھ پیر دوبارہ جکڑ دیے گئے۔ اب وہ ذرا بھی جنبش نہیں کر سکتی تھی۔ میرے خون کی گردش ایک دم تیز ہو گئی۔ مجھے اپنا پورا وجود گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔
ताशिया ने शायद मेरी इस कैफियत को भांप लिया था। वो मेरे शाने पर हाथ रखते हुए सरगोशी में बोली, नहीं सरोश, तुम अब मजीद कोई हिमाकत नहीं करोगे। उस लड़की को बचाने के तस्वर भी नहीं किया जा सकता। उसे बचाना किसी वहशी दरिंदे के मुंह से शिकार छीनने के मुतरादिफ है। कबरूती वहशी दरिंदों से भी ज्यादा सफाक है। ये पल भर में हमारी तिक्का बोटी कर देंगे। शहजादी ताशिया की बात कुछ गलत भी नहीं थी। मैं झाग की तरह मानिन बैठ गया। उस लड़की को बचाने का साफ मतलब था कि मैं ताशिया और अपने आप को हिलाकत में डाल दूं, लेकिन वो लड़की फिर भी महफूज ना रहती। अब मुझे अच्छी तरह एहसास हो गया था कि कबरूतियों के बारे में ताशिया की बताई हुई बातें महज किस्सा कहानी नहीं बल्कि हकायक पर मबनी है। जो कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था ये इस बात का जिंदा सबूत था। दफातन ताशिया चौंक पड़ी। फिर उसकी घुटी घुटी सी आवाज सुनाई दी, ये लड़की जिसे कुर्बान किया जाने वाला है, मैं इसे पहचानती हूँ। ये मेरे अमजाद यूताबाग की खास मुलाजिमा है। लेकिन इसके अलावा भी इसकी एक हैसियत थी। यूताबाग की मंजूर नजर भी थी। अब मैं कुछ कुछ दरपर्दा बात को समझ रही हूँ। पिछले दिनों यूतबा और इस लड़की के बारे में अफवाहें सुनने में आई थी। हरमजद हम पर रहम करे, बिला आखिर वो अफवाहें सच ही साबित हुई। मेरी तवज्जो लड़की से हटकर उस औरत पर मुर्तकिज हो गई जो आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकार की तरफ बढ़ रही थी। उसने तलवार वाला हाथ उठा रखा था। इसकी चाल में विकार और दबदबा था। उसका चेहरा अभी तक नकाब में छुपा हुआ था। वो शिकार के करीब पहुंची तो बेबस लड़की का जिस्म हाथ पांव बंधे होने के बावजूद तशंजा की कैफियत में बल खाने लगा। लड़की के करीब पहुंचकर वो औरत रुक गई। फिर उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़कर सर से बुलंद की। इसी वक्त हवा के झोंकों से फिर दोनों हाथ उठाने के बाद उसकी नकाब सरक गई। एक सानिये के लिए इसका चेहरा मेरी नजरों के सामने आ गया। वो बेपनाह हसीन थी। मैं उसके हुस्न की दिलकशी से मसहूर होकर रह गया। इसी लम्हे तासिया बोल पड़ी और ये शहर टूट गया। वो जोश से कांपती हुई आवाज में कह रही थी, ये नौबेस नहीं है बल्कि कोई अजनबी है। आखिर आज यहाँ क्या हो रहा है? पै दर पे हैरत अंगेज चीजें सामने आ रही हैं। पहले तुम, फिर ये लड़की और अब ये अजनबी अजीम पुजारन। मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती। अजीम पुजारन ने तलवार को सर से ऊपर उठा रखा था और साथ ही जेर लब कुछ बोलती भी जा रही थी। मेरे दांत सख्ती से एक दूसरे पर जम गए और शदीद सर्दी के बावजूद मेरे माथे से पसीना फूट पड़ा। मैं शहरज़दा सा अजीम पुजारन को एक टके देखे जा रहा था। अचानक तलवार बड़ी तेजी से और कुव्वत के साथ नीचे आई और लड़की के दिल में धंस गई। लड़की का जिस्म बुरी तरह तड़पा और एक ही लम्हे में साख्त हो गया। अजीम पुजारन लड़की के मुग्धा जिस्म पर यूं झुकी खड़ी थी जैसे उसे खुद अपना भी होश ना रहा हो। काफी देर बाद उसने सर उठाया और चारों तरफ देखा, दूसरी पुजारनों की तरफ और इस तरह जहां मैं और शहजादी ताशिया छुपे हुए थे। एक लम्हे को मुझे महसूस हुआ जैसे वो हम दोनों की मौजूदगी से आगाह हो गई हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। मैंने सांस रोक ली, लेकिन अजीम पुजारन ने एक झटके से सर को घुमाया और मुर्दा लड़की के जिस्म से दूर हट गई। फिर वो सर झुकाए सामने दरख्तों के झुंड की तरफ चलने लगी। इसके बाद का मंजर बड़ा ही घनावना था। पुजारा ने लड़की की लाश के करीब पहुंची और इसके आज़ा काट काट कर धड़ से जुदा करने लगी। मैं झुरझुरी लेकर रह गया। वाकई ताशिया ने उनकी बहीमियत और सफाहत के बारे में जो कुछ बताया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। मैं अभी वापसी का इरादा ही कर रहा था कि एक और मंजर सामने आया। ये मंजर भी दिल दहला देने वाला था। अगर मैं तासिया के मुंह पर हाथ ना रख देता तो यकीनन उसकी चीख ने उन सबको हमारी तरफ मुतवज्जा कर दिया होता। एकाएक चीख पुकार की आवाज बुलंद हुई और दो पुजारा ने एक और लाश उठाए हुए दरख्त के झुंड से बरामद हुई थी। लाश दूर ही से पहचानी जा सकती थी। ये उस बूढ़ी कबरूती औरत की लाश थी जो कुछ देर कबल मेरे हाथों हिलाक हुई थी। कबरूती बुढ़िया की लाश आग के करीब रख दी गई और बीन शुरू हो गया। पुजारा ने मरने वाले का शोक मना रही थी। ये तो बहुत बुरा हुआ, मैंने सोचा।
इस तरह इन्हें पता चल गया कि उनके दरमियान कोई अजनबी या दुश्मन भी मौजूद है जिसने उनके साथी को हिलाक कर दिया। कबरूती समझ गए होंगे कि बुढ़िया को हिलाक करने वाले ने उनकी वो पुरस्कार कुर्बानी की रस्म भी देख ली होगी। गोया जल्द ही हमारी तलाश शुरू होने वाली थी। मैंने मुड़कर देखा तो ताशिया की खूबसूरत आंखें आंसुओं में डूबी हुई थी। मुझे अपनी तरफ देखते पाकर उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था, हर बात से आगाह कर दिया था। हरमज़द ही हमें बचाए तो बचाए। पुजारन की लाश दरियाफ्त कर ली गई है। अब हमें भी उनकी दरिंदगी की भेंट चढ़ाना पड़ेगा। मैंने उसके आंसुओं से भीगे हुए दिलकश चेहरे को अपने हाथ में लेकर मोहब्बत व अपनायत से कहा, तुम बिल्कुल फिक्र फिक्र ना करो। मैं तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ और मैं ही तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। तुम्हें सिर्फ इतनी जहमत करनी होगी कि बहुत आहिस्ता और बेहद मोहतात होकर चलना होगा। कुछ दूर जाने के बाद तुम्हें एक बार फिर दौड़ लगानी पड़ेगी। थक गई तो मेरी पीठ हाजिर है। आखिर तुम्हारा ये खादिम कब काम आएगा? मेरी बातों से ढारस बंदी तो शहजादी के भीगे भीगे होंठ पर मुस्कुराहट आ गई। चांद के गुरूब होते होते ताशिया ने अकरान जाने वाला रास्ता तलाश कर लिया। कबरूतियों की हदूद से निकलने के बाद उसकी दहशत किसी हद तक कम हो चुकी थी, लेकिन उनका ख्याल अब भी उसके जहन से चिमटा हुआ था। उसके मुताबिक कबरूतियों का हल्का असर बहुत वसी था। वो मुआबा पर बुरी तरह छाए हुए थे। जिंदगी के हर शोबे में उनका अमल दखल था, इसलिए वो किसी भी वक्त हम तक पहुंच सकते थे। ताशिया ने रास्ते में अपने बारे में बहुत सी बातें बताई। वो साहिल पर वाक़ कबरूती स्कूल में 4 साल तक जेर तालीम रहने के बाद अपने महल वापस आ रही थी कि मल्लिका रूबा ने उसे अगवा करवा लिया। मल्लिका रूबा उसके बाप अहबास के बादशाह की बहन थी, लेकिन दोनों के दरमियान नफरत की दीवार हाइल थी। ताशिया अपने बाप की इकलौती औलाद थी। इसके बाद की कहानी हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सुनने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।